एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लव। और आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बहुत लोगों को डराता है, कैलकुलस। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नॉट जस्ट अंडरस्टैंड कैलकुलस, यू विल एक्चुअली एंजॉय इट। तो चलते हैं, नो स्किपिंग, नो फास्ट फॉरवर्डिंग, स्टे विद मी टिल द एंड, लेट्स गो। This is the topic which we will studies in this video. Now, move to the chapter 1. Introduction to Calculus. What is calculus? Calculus is a branch of mathematics that study change and motion. It was developed by Isaac Newton and Leibniz in the 17th century. It has two main branches, differential calculus and integral calculus. What is differential calculus? Which study rate of changes. Which study rate of changes. And what is integral calculus? Which study accumulation and area. अब ये सिर्फ बुक की बातें नहीं है. Calculus is used everywhere in real life. Physicists use it for velocity and acceleration. Engineer use it for designing bridge machine circuits. Economists used to maximize their profits, and biologists used to population growth and speed of disease. Computer science is also used differential calculus in machine learning, graphics, AI, and many more. तो अगर आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं दैट्स फाइन, बट कैलकुलस इज लिटरली द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स चैप्टर 2. व्हाट इज चैप्टर 2? लिमिट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो नाउ वी स्टार्ट विद द फाउंडेशन ऑफ calculus. Limits. A limits describe the value that a function approaches, not necessarily what it equals, but what it gets closer and closer to. We write it as limit f of x is equal to L as x approaches to a. How will read as limit f of x is equal to L as x approaches to a equals L. What's properties of limits? This sum rule, difference rule, product rule, quotient rule, constant rule, and power rule. Sum rule, limit f of x plus g of x is equal to, the limits are separated by both function. Limit f of x plus limit g of x. In difference, it is the same limit f of x minus g of x. It is separated on both function, limit f of x minus limit g of x. Similarly, in case of product rule, in quotient rule, what is the constant? C is a constant here. So, with simple, C just outside of the limit because doesn't affect constant limit, doesn't affect the constant function. Here, what is the main property in quotient rule? G of x should not equal to 0. If gx will be 0 here, this function will be not defined. If we divide some function by 0, it will be undefined. That's why where gx not equal to 0. आप कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट्स याद कर लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. हम इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इन्हें याद कर लेते हैं ताकि हम इन्हें किसी भी फॉर्मूले में अगर यूज करना हो तो हम डायरेक्टली यूज कर सकें. सो लिमिट साइन एक्स बाई एक्स is equal to n as x approaches to 0. Limit 1 minus cos x by x is equal to 0 as x approaches to 0. Limit e to the power x minus 1 over x is equal to 1 as x approaches to 0. Limit 1 plus 1 by x to the power x is equal to e. E, what is e? It is exponential function as x tending to infinity. Now we will move towards chapter 3. What is chapter 3? It is continuity. What is continuity? So a function f of x is said to be continuous at x equal to a if all of these three conditions are satisfied. What is condition 1? Condition 1 is f of a must be defined. Must be defined. What is the meaning of must be defined? Value exists at x is equal to a. तो अगर आप कोई ऐसा फंक्शन ले ले जिसकी वैल्यू ए पे डिफाइन ही ना हो तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फेल करती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. इसका मतलब किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस करने के लिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो कम से कम ये तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. व्हाट इज कंडीशन 2? लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स टेंडिंग टू ए. What is the condition 3? The limit must equal to f of a. Limit f of x is equal to f of a. मतलब हम किसी फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस दिखाना चाह रहे हैं तो ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए. Now there are three type of discontinuity: removable discontinuity, jump discontinuity, infinite discontinuity. So what we have to say? If limit in removable discontinuity, limit exists but f of a is not defined. I mean, if we'll form a graph, there will be a hole in the graph. That removable discontinuity can be easily
honeymoon, and the function can be continuous. And what is in jump discontinuity? जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट करते हैं बट वो इक्वल नहीं होता है. आई मीन एफ ऑफ ए एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी. अगर कोई फंक्शन माइनस इंफिनिटी पे डिफाइन है, अगर कोई फंक्शन इंफिनिटी पे डिफाइन है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैसे होगी, जंप डिसकंटिन्यूटी होगी. व्हाट इज इन केस ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी? फंक्शन शूट्स अप टू द इनफाइनाइट एट दैट पॉइंट. आई मीन फंक्शन सीधे या तो प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा या तो माइनस इंफिनिटी पे चला जाएगा जैसे ही एक्स ए को जा रहा होगा. तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा. लेकिन कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वी विल नॉट श्योर दैट दैट फंक्शन विल बी differentiable. We have to check that is this differentiable or not. Now we will move towards chapter 4. Chapter 4 क्या है? Derivatives and definition and notation. So what is derivatives? The derivatives of a function measures the instantaneous rate of change. Geometrically ये slope है tangent line का. कर्व पे किसी भी पॉइंट पे फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. एच एच अप्रोचेस टू जीरो. ये फॉर्मूला थोड़ा सा स्केरी लगता है लेकिन है नहीं. बहुत ही इजीली हम इस फंक्शन इस डेरिवेटिव के फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं. एक पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल से. ये बेसिकली ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल में एज टेंडिंग टू जीरो. हम इस लिमिट में डिफरेंशिएबिलिटी में बेसिकली क्या करते हैं, हम बहुत ही स्मॉल इंस्टेंटेनियस टाइम पे कुछ किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे होते हैं. और बेसिकली डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है किसी पॉइंट पे. ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका यही है. डेरिवेटिव्स को हम कई तरीके से शो कर सकते हैं और अभी सारे नोटेशन को अलग अलग नाम दिया गया है. जैसे एफ डैश एक्स को लैग्रांज नोटेशन बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन यूज नोटेशन है. डी डी एक्स ऑफ वाई इसको लेबनीज नोटेशन बोलते हैं. लेबनीज नोटेशन कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज होता है. डी डी एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स ये डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म है. और if f of x is greater than 0, function is increasing. If f dash x is less than 0, function is decreasing. If f dash equal to 0, क्या होगा? Geometric meaning. f dash a slope of tangent line to y is equal to f of x at x is equal to a. function increasing हो गया, function decreasing हो गया. ये function अगर f dash x is equal to 0 होता है तो हम stationary point निकालते हैं. यहाँ से हम possible maximum होगा, possible minimum होगा. Now we will move towards chapter 5. In this chapter, we will study the rule of differentiation, that constant rule. अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होती है. डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो. पावर रूल क्या कहता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल used in derivative. What is the constant multiple? Just constant similarly बाहर आ जाएगा. ddx of c f of x c f dash x. कांस्टेंट को जस्ट आउटसाइड ले लेना है, कुछ नहीं करना और डिफरेंशिएट कर देना है. सम रूल क्या कहता है? ddx of f plus g. ddx of f plus ddx of g is equal to f dash x plus g dash x. डिफरेंशिएट कर देंगे हम ईच टर्म को. डिफरेंस रूल क्या होता है? ddx of f minus g. ddx of f minus ddx of g is equal to f dash minus f dash x minus g dash x. सेम आइडिया है सम रूल. सिमिलरली प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल याद करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव्स में. इसका यूज आपको लगभग सभी जगह ही करना होता है. डी डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी इज इक्वल टू एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश. क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल क्या कहता है? डी डी एक्स ऑफ एफ ओवर जी इज इक्वल टू एफ डैश इंटू जी माइनस एफ इंटू जी डैश ओवर जी स्क्वायर. जी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. है फंक्शन अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड एफ वाई जी अनडिफाइंड हो जाएगा और हम डिफरेंशिएशन उसका डेरिवेटिव्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. एट लास्ट चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है? अगर फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन डिफाइंड है तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बाय चेन रूल. ये किसी कंपोजिट फंक्शन
फंक्शन के अंदर फंक्शन का डिफाइन होगा कंपोजिट फंक्शन। एफ ऑफ, तो हम पहले एफ डैश को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर के फंक्शन जी डैश को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये होता है हमारा चेन रूल। अगर ये सारे फॉर्मूले लर्न हो गए तो डेरिवेटिव करना कोई महान काम नहीं, तुरंत हो जाएगा, तुरंत। Now we will move towards chapter 6. What is chapter 6? Standard derivatives tables. इन सभी को मेमोराइज करो और फिर एग्जाम में जाओ, तो एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। जिस लाइक ये सारे फॉर्मूले, x to the power n is equal to n, x to the power n minus 1, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव minus sin x, tan x का डेरिवेटिव sec square x, cot x का डेरिवेटिव minus cos square x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x. We can find all these derivatives from first principle, जो अभी अभी बताया उस फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ये सारे फंक्शन के डेरिवेटिव्स को इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लर्न कर लोगे तो फॉर्मूला आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप तुरंत तुरंत फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सेव कर लो ताकि याद कर सको। Now we will move towards chapter 7. Chapter 7 क्या है? चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। चेन रूल क्या होता है? बेसिकली ये कंपोजिट फंक्शन के लिए, अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ फिर जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये होता है चेन रूल। इसको तब यूज करते हैं जब इसी एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है। डिफरेंशिएट पहले आउटर वाले करेंगे, फिर इनर वाले को सेम रखेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इनर वाले का डेरिवेटिव लिख देंगे। जस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ आएगा। यहाँ क्या है? साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन के अंदर ये एक दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स। तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या है, हम यहाँ पे देखे थे, साइन का डेरिवेटिव है हमारे पास कॉस एक्स। तो हम पहले साइन का लिखेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। अब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में करके डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। सिमिलरली ई की टू पावर एक्स 3x प्लस 2 को करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था? ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ई टू द पावर 3x प्लस 2 सिमिलरली सेम लिख देंगे और मल्टीप्लाई में 3x प्लस 2 को डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 2 क्या है? कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव 0, 3x को डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यहाँ 3 मिलेगा। अब सिमिलरली क्या है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का बेसिकली यूज तब करते हैं हम जब किसी दो फंक्शन को प्रोडक्ट में दिया होता है। यूज व्हेन टू फंक्शन आर मल्टीप्लाई टुगेदर। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। तो इसका क्या होता है? एफ ऑफ प्लस एक्स, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को एज इट इज रख देंगे, फिर प्लस पहले फंक्शन को एज इट इज रख देंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। मेमोरी ट्रिक क्या है? डी फर्स्ट सेकंड, वैसे ही फर्स्ट टी सेकंड, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। एक बार आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगो ना, आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो इतना बर्डन नहीं लेना है कि अभी इतने सारे फॉर्मूले कैसे लर्न होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे और आपको फॉर्मूले अपने आप लर्न होते जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मैं एक फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन क्या है? साइन एक्स है। तो पहले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो दूसरे को अलग से रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और दूसरे फंक्शन को रख दिया। फिर पहले फंक्शन को एज इट इज रख दिया और दूसरे फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स। हुआ ना बहुत ही इजीली। आपको कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रख दो, पहले को एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। सिंपल। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का बेसिकली अगर दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो हम कोशेंट रूल लगा के उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ बाई जी, तो एफ को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को एज इट इज रख देंगे, फिर माइनस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे जिसका डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से। एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं, यहाँ दो फंक्शन डिवाइड में है, पहला फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा फंक्शन एक्स है। तो पहले क्या है? हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो न्यूमरेटर क्या है? साइन, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे cos x और
डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देंगे, फिर माइनस न्यूमिनेटर को ऐसे रखेंगे एज इट इज साइन एक्स, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 साइन एक्स आ जाएगा, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के फंक्शन के स्क्वायर से, डिनोमिनेटर क्या है एक्स, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना इजी। तीनों रूल प्रैक्टिस करो विद एग्जांपल्स, वरना सिर्फ पढ़ के भूल जाओगे। ये सारे फॉर्मूले बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही लर्न होंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड चैप्टर 8, व्हाट इज दिस, सेकंड डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारा टॉपिक है जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पे इसका ला दूंगी, और उसके बाद मैं आप लोग को एक पीडीएफ शेयर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगी, जिससे आपको फॉर्मूले लर्न होते रहे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करो, इट्स रियली हेल्प्स द चैनल। शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, उन्हें भी हेल्प मिलेगा, और सब्सक्राइब करो विद द बेल आइकन, ताकि पार्ट मिस ना हो। कमेंट में लिखो कैलकुलस डन, और अगर पूरा वीडियो देखा, see you in the next one. Keep learning, keep growing.